Namaste everyone and welcome to yet another session of this series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT from CAT 17 till CAT 2024. Yet another day, yet another session from CAT 2019 slot 2. Let's quickly look at our fate framework and decide whether this particular set should be picked in the first go because clearly सारे sets का time CAT नहीं देता आपको कि आप solve कर पाओ. So let's quickly check the data and decide whether this set should be doable. The first year students in a business school are split into 6 sections. Okay, in 2019 the business statistics course was taught in these 6 sections by A to F. All 6 sections had a common midterm, common end term worth 100 marks. ET contained more questions than MT. Questions were prepared collectively by 6 faculty members. So all in all, clues को एक बार देख ले. And I prepared the 5th question for MT. I am familiar. There is no doubt कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ नया पजल है, कैसे सॉल्व होगा. There is nothing new in this. So familiarity is in our favor. Ambiguity पे चलते हैं. Ambiguity, all questions prepared by faculty member appeared consecutively. तो ऐसा समझने में कोई डाउट नहीं लग रहा. I'll say ambiguity is also in our favor. T, time consumption. Now by the time I read the first 2-3 sentences, I felt कि मुझे एक और बार पढ़ना पड़ेगा कि exactly कॉमन मिड टर्म कॉमन एंड टर्म है तो कॉमन का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब सबकी इकट्ठा ही हो रही है 6 सेक्शंस की, 100 मार्क्स हैं तो इट इज टेकिंग टाइम. प्लस देयर आर 5 क्लूज. अगर मैं थोड़ा सा भी असेसमेंट करूं तो 6 फैकल्टी मेंबर्स ने 2 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं और उसमें दे आर गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स ईच. आई एम सेइंग कि टाइम कंजम्पशन मेरे फेवर में नहीं है. दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग सेट. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड हैव सॉल्व्ड और ट्राइड दिस सेट ऑन योर ओन. If you have not, please pause the video. Please don't look at the solution that I'm going to present straight away. Make sure that you try it out. Keep a timer for 20 minutes. 20 minutes के पहले आपका सेट पूरा सॉल्व हो गया, ग्रेट. नहीं होता है तो skip it, look at the solution. Tell me in comments what is the amount of time in minutes that you took to solve this set on your own. अगर खुद से बन गया, नहीं बना तो obviously solution देख के करते आ जाएगा. Extra info in question. Second question was prepared by how many 5 marks per question there? Who prepared 15 mark questions etc. तो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन सो नहीं है, मतलब दिस इज इन आवर फेवर. तो आउट ऑफ द 4 पैरामीटर्स आई वुड से दैट 3 आर इन आवर फेवर. सो मे बी अ डुएबल सेट बट टाइम कंजम्पशन कैन बी अ बिग फैक्टर बिकॉज यू हैव 40 मिनट्स एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि भले ही 3 चीजें हमारे फेवर में है पर अगर वो सेट 20 मिनट का आपको थॉट दे रहा है तो प्लीज उसे 3rd या 4th सेट रखो. पहले वो सेट्स निपटा लो, कंप्लीट कर लो जो आपको लगते हैं कि आप कर सकते हो. यू कैन डेफिनेटली गेट दोज 12 मार्क्स इन द बैंक. So not a set that I'll prefer straight away, maybe a 3rd, maybe a 4th set, maybe try and get few questions right by partial information, something on these lines. Now structure कैसा बनाए, तो structure बनाने के लिए पहले थोड़ी बहुत basic understanding develop कर लेते हैं कि what does this set talk about. So I'm assuming now that you have tried the set so far, you have understood all the clues, you have given your best shot and now we are discussing this. So first year students are split into 6 sections. ठीक है भाई. 2019 the stats course was taught in the 6 sections by these 6 people. A से F straight forward data, तो वहां कोई confusion का scope नहीं है. All 6 sections had a common midterm. तो 6 के 6 sections का इकट्ठा एक पेपर हो रहा है. किसका? midterm का और end term का. So which is also pretty familiar as students. हम भी अपने college life में midterm end term देते रहते हैं. So we are familiar कि एक midterm होगा, एक end term होगा, दोनों 100 मार्क के. ET contained more questions than MT. तो भले ही ईटी 100 मार्क का है लेकिन ईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है. सो ठीक है. स्ट्रक्चर करने के लिए मैं सोच रहा हूं मैं टेबल कैसी बनाऊं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई राइट. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक तो क्वेश्चंस का. कंसीडरिंग एमटी एंड ईटी टुगेदर, ईच फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर्ड द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो भाई हर एक फैकल्टी 6 फैकल्टी है, हर एक ने सेम नंबर करा तो मतलब या तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे पेपर में वो 6 का मल्टीपल होंगे. 6, 12, 18, 24 ऐसे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे. अगर हर एक फैकल्टी ने एक क्वेश्चन बनाया तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 बनाए तो 12 हो जाएंगे एंड सो ऑन. एंड दिस इज ट्रू फॉर ईटी एंड एमटी बोथ. क्यों? ईटी एंड एमटी टुगेदर कंबाइंड. तो ईटी एमटी टुगेदर कंबाइंड, सपोज सबने दोनों कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया तो दोनों को मिलाकर टोटल क्वेश्चन 6 होंगे या फिर टोटल क्वेश्चन 12 होंगे या फिर टोटल 18 होंगे या फिर टोटल 24 होंगे. दिस इज अ कॉम्बिनेशन वाला डेटा. Each of MT ET had at least 4 questions that were worth 5 marks. अच्छा, ये पता पड़ गया कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है. There at least 3 questions that were worth 10 marks and at least 2 questions that were worth 2 marks. तो फटाफट टोटल करें, 5 4s are 20 marks, 20 और 30 50 और 30 80 marks. तो यही हो गए हमारे.
80 मार्क्स हो गए और क्वेश्चंस कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9, 9 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो गए हमारे दोनों के मिलाकर, नहीं इंडिविजुअल एक पेपर के अगर 9 है तो दो पेपर के 9 2 18 तो मिनिमम ऐसे ही हो गए 100 नंबर के, और दोनों के मिलाकर 6 का मल्टीपल चाहिए तो 9 2 18 तो वैसे ही आ चुके हैं, तो या तो 18 आंसर आएगा या 24 आएगा, 18 नहीं हो सकता है पता है हमें, या और बड़ा मल्टीपल 30 ऐसा कुछ आएगा। 18 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अभी 80 मार्क ही हुए एक पेपर के, तो 2 पेपर्स 80 मार्क्स, अभी 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा बिल्ड करने हैं। आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि स्ट्रक्चर क्या करूं, सो मुझे एक स्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा मार्क्स वाला पार्ट कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं, दैट इज वन पार्ट टू अंडरस्टैंड कि ईटी में कितने क्वेश्चंस है, एमटी में कितने क्वेश्चंस है। सेकंड पार्ट विल बी ए प्रिपेयर द फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ whatever be the number of questions, because मुझे पता है कि नंबर 18 से बड़ा है तो 24 है या 30 है 36 है, इस तरह का कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये टोटल है, तो अगर बराबर बराबर ले लें तो 12 हो जाएंगे, पर बराबर नहीं ऐसा बोल दिया उन्होंने, ईटी कंटेन मोर क्वेश्चंस, वो भी क्लूज को यूज करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा, बट नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चन को किसने फ्रेम करा है। आई होप आई एम राइट। ए prepared one question for MT, every other faculty member prepared more than one question, all questions were appeared consecutively, so I need to figure out, so the way I am going to structure it is this way कि मैं ये बोलने वाला हूं कि आप एक तो टेबल बना लें जिसमें कितने क्वेश्चंस कौन फ्रेम कर रहा है ये डेटा पता पड़ता है, बिकॉज हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्लू ये दिया है कि NA prepared fifth question and NA prepared one question plus each of them prepared same number of total questions, तो जो भी डेटा आएगा सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वो हम एक टैबुलेट कर लें कि ए बी सी ये कितने कितने क्वेश्चंस बना रहे हैं, ईटी के कितने बना रहे हैं, एमटी के कितने बना रहे हैं, एक टेबल तो ये बन जाएगा। दूसरा टेबल हमें इसका बनाना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चंस है, लेट सपोज 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस या 11 क्वेश्चंस है एमटी में, तो एमटी के 10 क्वेश्चंस लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उन क्वेश्चंस के नंबर पे हम वेरिएबल एलोकेट कर लें कि ए ने बनाया है वो बी ने बनाया है, सो सुपर टाइम कंज्यूमिंग। इतना टाइम देने के बाद मैं छोड़ दूंगा, honestly speaking I'll leave this set because this seems to be very time consuming, मुझे स्ट्रक्चर सोचने में इतना टाइम लग रहा है, that is my fault, हो सकता है आप सॉल्व करें आपसे जल्दी हो जाए, well and good, then there are questions, so the structure that I have formed is in front of you। मैंने यहाँ करा है कि A से लेकर F तक MT में कितने क्वेश्चन बनाते हैं, ET में कितने बनाते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने बनाते हैं और ग्रैंड टोटल कितना है, एक टेबल ही बनाया है, और यहाँ पर मैंने बाइफरकेशन कर लिया है, स्टिल डोंट नो कि कितने क्वेश्चन हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे डिविजन अपनी रफ शीट में कर लिए कि एमटी में क्वेश्चन नंबर 1 सपोज एफ ने बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज ई ने बनाया, व्हाटएवर आई डोंट नो, और ऐसे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो हॉरिजॉन्टली लिखते जाऊंगा एमटी के लिए और ईटी के लिए। अब एक एक करके क्लूज को समझते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। आई थिंक द फर्स्ट क्वांट बेस्ड रीजनिंग वाला पार्ट विच आई एम गुड एट, वो वाला पार्ट मुझे लास्ट पार्ट में मिल रहा है कि दोनों ही पेपर में इन बोथ एमटी एंड ईटी, सो सॉरी इन बोथ एमटी एंड ईटी, ये वाला पार्ट all the 5 mark questions preceded the 10 mark questions and all the 15 mark questions followed the 10 mark questions। मतलब जो पेपर में क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो कैसा है, 5 नंबर के क्वेश्चंस, फिर 10 नंबर के क्वेश्चंस, फिर 15 नंबर के क्वेश्चंस, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर है। प्लस दे आर सेइंग ईच ऑफ एमटी एंड ईटी हैड एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस दैट वर वर्थ 5 मार्क्स। तो इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं मार्क्स हमारे पास है 5 10 15, ये तीन टाइप के क्वेश्चन टाइप्स है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस में गारंटीड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 432 तो है, 432 एड अप टू हाउ मेनी मार्क्स, तो हमने कैलकुलेट पहले कर लिया था, मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, 5 4 20, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 30 और 30 60 और 20 80 मार्क्स का तो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता पड़ गया है कि 80 मार्क्स हैं। अब बचे हुए 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सो दैट 100 मार्क का पेपर बन पाए, वो मैं थॉट देता हूं कि अब 80 मार्क्स हो चुके हैं, मुझे 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा ऐड करने। 20 मार्क्स में 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूं, आई कैन नॉट से कि 15 नंबर के 2 क्वेश्चन और बढ़ा दो, बिकॉज 15 2 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बट कैन आई स्टार्ट विद दिस कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं 15 मार्क्स का, तो 20 एक्स्ट्रा जोड़ने हैं, उसमें से 15 मार्क्स इस एक क्वेश्चन से आ गए। अब 5 मार्क, तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ा लो, 10 मार्क्स के 0 क्वेश्चन। So then in this case 5 marks के 5, 10 marks के 3 और 15 marks के 3, overall I'll have 5 and 3 8 and एक बार चेक करें, 5 and 3 8 and 3 11, can I say 11 questions हो जाएंगे मेरे, अभी 9 questions है, these were totaling to 9 questions।
ना आई एम सेइंग 11 क्वेश्चंस हो जाएंगे जब मैं एक एक बढ़ा लूंगा और मार्क्स मेरे पूरे 100 हो जाएंगे। सो प्लस 20 करके मेरे मार्क्स 100 हो गए। ये पार्ट समझ में आया? जैसा हमने 15 मार्क का एक क्वेश्चन बढ़ाया है, 15 मार्क के 0 क्वेश्चन भी बढ़ा सकते थे। 15 मार्क के 0 बढ़ाए मतलब अब हमें 5 और 10 में ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बहुत इजी लग रहा है कि सर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बढ़ा दो, 5 मार्क का एक भी मत बढ़ाओ। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पहले 9 थे, 9 में 2 एक्स्ट्रा हुआ, 11 क्वेश्चन अभी भी हो गए, 100 मार्क्स हो गए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 15 मार्क्स का एक भी नहीं बढ़ा तो हमें 5 और 10 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बोलते हैं 10 मार्क का एक क्वेश्चन ले लो और 5 मार्क्स के 2, 5 2 10 और 10 20 मार्क्स हो जाएंगे। अभी भी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़े, 3 क्वेश्चन 9 में 3 एक्स्ट्रा बढ़ा तो कितना हो जाएगा 12। तो मार्क्स कितने हो गए 100 फिर से। और एक और सिनेरियो बन सकता है क्या, 0 ले लें 15 को, 10 मार्क्स के भी 0 ले लें तो 5 मार्क्स के सारे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ाने 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। सो 4 अगर क्वेश्चन ले लें तो 9 और 4 13। सो 13 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गए 100। तो कैन आई से दीज आर द एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज। ये 11 11 12 13 आर द एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज, एक्स्ट्रा इन द सेंस टोटल पॉसिबिलिटीज। 4 केसेस बन सकते हैं 100 मार्क का पेपर करने के लिए ईटी और एमटी में। या तो आपके 11 क्वेश्चंस होंगे विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या तो 11 क्वेश्चंस होंगे विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या तो 12 क्वेश्चंस होंगे एक पेपर में एमटी में, और सिमिलरली दूसरे ईटी वाले पेपर में भी सिमिलर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। वी डोंट नो किसमें कितना है। अब अगर हम पहले वाले क्लू पे आए कि ईटी कंटेन्ड मोर क्वेश्चंस देन एमटी, तो हमें डेफिनेटली पता है कि ईटी के क्वेश्चन ज्यादा है एमटी से। तो अब एमटी या तो 11 होगा या 12 होगा, ईटी उससे ज्यादा हो सकता है तो 12 होगा या 13 होगा, अभी नहीं पता। ऑल्सो व्हाट एल्स इज गिवन, the questions for MT and ET were prepared collectively by the 6 faculty members. Considering MT and ET together, each faculty member prepared the same number of questions. हर एक फैकल्टी ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। तो ए ने अगर एक्स प्रिपेयर करें तो इसने भी एक्स, इसने भी एक्स, इसने भी एक्स, इसने भी एक्स, इसने भी एक्स। कैन आई से टोटल विल बी 6x, और 6x है तो टोटल मतलब किसका, ईटी और एमटी मिलाकर का, ईटी और एमटी मिलाकर का टोटल 6 का मल्टीपल होना चाहिए। उसमें भी ईटी शुड बी ग्रेटर देन एमटी। तो आई एम सेइंग ईटी प्लस एमटी मिड टर्म और एंड टर्म मिलाकर टोटल हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6x होना चाहिए। उसमें ईटी ग्रेटर देन एमटी होना चाहिए। ईटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी ग्रेटर देन एमटी। और जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ईटी एमटी की वो 11 11 12 13 है। सपोज मैं 11 12 का कॉम्बो ले लूं, बिकॉज ईटी एमटी करना है तो एक वैल्यू दूसरे से छोटी लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं 11 एमटी की वैल्यू ले लूं, ईटी की वैल्यू 12 ले लूं, तो 11 और 12 कितना होता है 23, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो ये नहीं चलेगा। फिर मैं अगर 11 13 ले लूं चलेगा, 11 प्लस 13 इज 24, सो दैट इज वन एक्सेप्टेबल कॉम्बो। सो आई एम राइटिंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर फॉर एमटी एंड ईटी। मैं यहां लिखता जा रहा हूं एमटी, यहां लिखता जा रहा हूं ईटी, और हमें एमटी से बड़ी वैल्यू ईटी की करनी है, और जो टोटल है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए देखना है। तो मैंने लिखा कि एमटी में 11 क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिकॉज इन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूशन आना है। एमटी के 11 ले लिए तो ईटी के 12, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि टोटल 23 क्वेश्चंस हो जाएंगे, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। 11 के साथ 13 ले सकता हूं बिल्कुल, बिकॉज टोटल 24 हो जाएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। क्या मैं 12 के साथ 13 का कॉम्बो ले सकता हूं? नहीं, देन क्वेश्चंस विल बी 25, सो दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सो द ओनली एक्सेप्टेबल कॉम्बो इज एमटी में 11 क्वेश्चंस होंगे और ईटी में जो है 13 क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज एमटी हैज टू बी ग्रेटर देन ईटी। क्या हम 12 ले सकते थे? ले सकते थे अगर वो एक क्लू नहीं बोलते कि ईटी में ज्यादा क्वेश्चन है एमटी से, क्योंकि टोटल 24 आ जाता तब। तो वी नो फॉर श्योर कि एमटी में, सो लेट्स एलोकेट दिस इन आवर टेबल, वी नो दिस फॉर श्योर विद 100% गारंटी दैट एमटी में 11 क्वेश्चंस हैं और ईटी में 13 क्वेश्चंस हैं, और 11 और 13 ऐड करें तो दैट टोटल बिकम्स व्हाट 24। सो मैं 6x की वैल्यू 24 लिख दूं, 6x इज 24, 6x इज 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो आई क्विकली इरेज दिस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, और मैं अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दूं कि ये टोटल 24 हो गया। तो हर एक ने कितने कितने क्वेश्चंस बनाए वो भी आ गया। एवरी इंडिविजुअल हैज प्रिपेयर्ड 4 क्वेश्चंस, दोनों मिलाकर। ए ने 4 क्वेश्चन बनाए, एमटी में कितने बनाए, ईटी में कितने बनाए ये भी नहीं पता, शायद क्लू से यूज करेंगे, बट बेसिक आइडिया क्लियर है। आई विल इरेज दिस पार्ट एज वेल बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अननेसेसरी क्लटर, कंफ्यूजन पैदा करेगा। सो विल हैव मोर स्पेस। अच्छा, क्या अभी हमें क्वेश्चंस पता है? हमें ये तो पता है कि एमटी के 11 है, पर 11 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 4 और 1 5 क्वेश्चंस इन द 5 मार्क्स वाला एरिया, या फॉर एग्जांपल ये 2 सिनेरियोस बन रहा है ना 11 के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, 4 3 2 तो मिनिमम लेना ही है, तो 11 में से कौन सा है? बट ये तो हमें डेफिनेटली पता है कि जो 13 क्वेश्चन सीटी के हैं उसमें 4 और 4 8 क्वेश्चन जो हैं
वो किसके हैं? 8 क्वेश्चंस 5 मार्क वाले हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज क्विकली स्ट्रक्चर दिस एज वेल कि मैं ईटी में 13 क्वेश्चंस हैं, तो मैं ईटी के 13 क्वेश्चंस का नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन ईटी के हो गए। और एमटी में 11 क्वेश्चंस हैं, तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्वेश्चंस एमटी के हो गए। बचे हुए 2 ब्लैंक खेल रहेंगे, वी डोंट केयर। अब वी नो कि 11 क्वेश्चंस एमटी 13 क्वेश्चंस ईटी। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में और कुछ मिस हुआ है क्या, एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। वर्थ 100 मार्क्स के हमने क्वेश्चन पेपर का डिजाइन सोच लिया है। एमटी के लिए देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और ईटी के लिए 13 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी फिक्स है। तो ईटी के जो 13 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी फिक्स है, पहले उसको एलोकेट कर लेते हैं। सो कैन आई से ईटी के लिए 13 क्वेश्चंस विल बी दिस, जिसमें 4 और 4 8 क्वेश्चंस। तो आई विल एलोकेट इट दिस वे कि 1 से लेकर 8 क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर। 1 से लेकर 8, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं 1 से लेकर 8 5 मार्क वाले? बिकॉज ये क्लोब ने पहले ही पढ़ लिया था, ऑल द 5 मार्क क्वेश्चंस प्रीसीडेड द 10 मार्क क्वेश्चंस एंड देन 15 मार्क्स। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर वाले हैं, और हमें पता है कि 5 नंबर वाले 8 क्वेश्चन है। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन होंगे, तो देयर आर 3 क्वेश्चन, यहां तो 0 लिया 13 में, तो 3 और 0 3 क्वेश्चन जो अगले हैं 8 से 11 8 9 10 सॉरी, ये 10 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। और आखिरी के जो 3 क्वेश्चंस, तो आखिरी के 3 है या 2 है? 9 13 क्वेश्चंस में एक बार चेक कर ले, 8 और 3 11 11 और 2, आखिरी के 2 क्वेश्चन। सो आई हैव मार्क्ड इट रॉन्गली, एक बार करेक्ट कर ले। सो 8 तक तो हो गया, अगले 3 क्वेश्चंस 9 10 11 जो है वो 10 मार्क्स के हैं, और 12 और 13 जो है वो 15 मार्क्स के। तो वी नाउ हैव क्लियर बाइफर्केशन 5 मार्क 10 मार्क 15 मार्क। 11 क्वेश्चंस के लिए दिक्कत यह है कि 5 मार्क वाले 4 और 1 वाला कॉम्बो लेंगे या 4 और 0 वाला कॉम्बो लेंगे, नहीं पता। हमें ये तो पता है कि पहले 4 क्वेश्चन 5 मार्क के हैं, 5वां क्वेश्चन होगा कि नहीं वो नहीं पता है। तो आई थिंक उसके लिए एक सबसे अच्छा क्लू पहला वाला देके रखा है, ए प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन फॉर बोथ ईटी एंड एमटी। तो ये डेटा भी एलोकेट कर लें, ए प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन, ए प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी, ये एलोकेट कर लेते हैं। और क्या दिया है, फॉर एमटी दिस क्वेश्चन कैरिड 5 मार्क्स, और एमटी के लिए ये 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का था। 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का कैसे हो सकता है, जब 5 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। सो फ्रॉम दिस डेटा वी आर 100% श्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 11 क्वेश्चंस विल बी दिस, व्हिच मींस द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, सो मैं एलोकेशन कर दूं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक का, ये 5 नंबर के हैं। और अब यहाँ के 3 और 0, सो अगले 3 क्वेश्चन 6 7 8, और उसके अगले 3 क्वेश्चन 2 और 1, ये कॉम्बो और ये कॉम्बो, ये 10 मार्क का है। तो 10 मार्क के 3 क्वेश्चन, सो 6 7 8, दिस इज 10 मार्क। देन ये 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, तो 9 10 11, दिस इज 15 मार्क। और हमें ए का पता है कि ए ने जो है वो 5th क्वेश्चन करा है दोनों ही में। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो आई थिंक दिस इज सुपर चैलेंजिंग कि पहले ये ढूंढ पाए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर किसने एलोकेट करा है। और अब ये वाला डेटा बाइफर्केशन का भी बहुत अच्छे से क्लियर है। फर्स्ट क्लू हमने यूज कर लिया है, ए प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी, व्हिच इज अ गुड थिंग। एमटी के लिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ए प्रिपेयर्ड 1 क्वेश्चन फॉर एमटी, तो ये डेटा उन्होंने दे दिया दैट ए प्रिपेयर्ड 1 क्वेश्चन फॉर एमटी। अगर ए ने 1 क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, तो ईटी के कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि 1 और 3 का टोटल 4 आना है। परफेक्ट। तो वी आर डन विद दिस सेकंड क्लू। All questions prepared by a faculty member appeared consecutively in MT as well as ET. A very good clue. What does this clue mean? All questions prepared by a faculty. Suppose faculty सी उठा लेते चेतन। So चेतन ने जो questions बनाए MT में या ET में, वो consecutively आएंगे। मतलब अगर चेतन ने suppose 5th और 6th क्वेश्चन बनाए या 2 क्वेश्चन बनाए, तो 5th और 6th हो सकते हैं, वो 6th और 7th हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 3rd क्वेश्चन चेतन का है और 7th क्वेश्चन चेतन का है, बीच में गैप नहीं होगा। दे विल बी कंसेक्यूटिव। सिंपल है। MT में भी ET में भी ग्रुप्स में क्वेश्चन नंबर्स अपीयर करेंगे। So all questions we have used up this clue, we'll keep this at the back of our head. चेतन prepared the 3rd question in both MT and ET. चेतन ने 3rd क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, तो चेतन का 3rd क्वेश्चन लोकेट कर देते हैं ET और MT दोनों में ही। आगे क्या बोला है? चेतन prepared the 3rd question both MT and ET and E prepared the 8th question in both. E prepared the 8th question. E को allocate कर देते हैं दोनों ही सिनेरियोज में 8th क्वेश्चन के लिए। So we have used up this clue. F prepared the first question of MT at the last in ET. F prepared the first question of MT
तो F को एलोकेट कर देते हैं यहां फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमटी एंड द लास्ट क्वेश्चन इन ईटी। तो F प्रिपेयर्ड द लास्ट क्वेश्चन, तो यहां F आ जाएगा। D prepared the last question of MT, D prepared the last question of MT, D allocate कर देते हैं and the first in ET, तो D prepared the first in ET। तो अभी तक का डेटा यहां तक फिल हुआ। कैन वी ट्राई एंड फिल दिस टेबल कि किसने कितने क्वेश्चंस बनाए होंगे, कुछ और डेटा। सेकंड वाले क्लू का एक सेंटेंस हमने पढ़ा है, ए प्रिपेयर वन क्वेश्चन फॉर एमटी, तो वहां से हमने वन और थ्री एलोकेट कर लिया था। इसका सेकंड सेंटेंस देखो, एवरी अदर फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर्ड मोर देन वन क्वेश्चंस फॉर एमटी। एमटी के लिए एवरी अदर फैकल्टी मेंबर प्रिपेयर्ड मोर देन वन क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हर एक फैकल्टी ने एमटी के लिए एक से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं। सो वी कैन से यहां पर कम से कम 2 आएगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 और ये 1 मिलाकर 11 तो वैसे ही हो गया। अगर मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन भी लें, बिकॉज क्लू क्या बोल रहा है, एमटी में हर एक फैकल्टी ने एक से ज्यादा क्वेश्चन बनाया, तो कम से कम 2 तो एलोकेट करेंगे। 2 एलोकेट करें तो 2 5 10 और 1 11, टोटल फिल हो गया, मतलब 2 ही एलोकेट होंगे, इसके अलावा और कुछ एलोकेशन नहीं हो सकता। सो वी कैन एलोकेट 2 ईच हियर। अब अगर ये 2 ईच हो गया है तो टोटल 4 करना है, तो बचे हुए 2 में सारी वैल्यूज को 2 होना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टोटल भी पता पड़ गया। अब वो कंसेक्यूटिवली वाला डेटा यूज करते हैं कि ए ने एमटी में तो एक ही क्वेश्चन बनाया। अब अगर ए ने एमटी में एक ही क्वेश्चन बनाया, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो उसके पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो बिकॉज अब बचे हुए सारे फैकल्टी मेंबर्स 2 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें हर एक एरिया के। तो फॉर एग्जांपल सी ने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो सी कैन आई से फॉर श्योर कि सी 2 3 में नहीं आ सकता, बिकॉज एफ फिर कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। एफ ने भी तो एमटी में 2 क्वेश्चन बनाए, तो गारंटी है कि पहले 2 क्वेश्चन एफ ने बनाए होंगे, अगले 2 क्वेश्चन सी ने बनाए होंगे। एमटी में ए ने कितने क्वेश्चन बनाए, एक ही बनाया, तो ए का काम हो गया है। अगले 2 क्वेश्चन कंटिन्यूस होने पड़ेंगे, उसके अगले 2 कंटिन्यूस होने पड़ेंगे। तो अगर ये अगले 2 का ग्रुप बनेगा 6 7 का, क्योंकि ए यहां पे फिल हो चुका है, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैव टू बी कंसेक्यूटिव। 3 क्वेश्चंस किसी ने नहीं बनाए एमटी में। एमटी में या तो सबने एक बनाए, एक वाला यूज कर लिया ए, एंड एवरी अदर पर्सन हैज क्रिएटेड 2 क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैव टू बी बाय द सेम पर्सन व्हिच इज ई, एंड द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैव टू बी बाय द सेम पर्सन डी। तो डी डी ई ई आ गया, बचा कौन पर्सन, बी, तो बी के ये दोनों क्वेश्चंस होने पड़ेंगे। सो हमने एमटी के लिए क्वेश्चंस का कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ी कन्वीनियंटली बना लिया। सेम थॉट ईटी के लिए देते हैं, वो कंसेक्यूटिव वाला क्लू यूजफुल रहेगा। ए ने कितने क्वेश्चन बनाए ईटी में, ए ने 3 क्वेश्चन बनाए। अब अगर ए ने 3 क्वेश्चन कंसेक्यूटिव बनाए, तो क्या हम 4 5 6 वाला थॉट ले सकते हैं? 2 मिनट के लिए देते हैं कि 4 5 6 भी हो सकता है। अगर 4 5 6 हो गया, तो फिर ये सेकेंड क्वेश्चन डी को तो गया सी को, तो सपोज डी को दे दिया, तो डी के तो 2 कंसेक्यूटिव हो गए, पर सी के भी तो 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन कंसेक्यूटिव नहीं आ पाएंगे। तो पहले 4 क्वेश्चन में 2 के 2 ग्रुप तो बनना जरूरी है, मतलब दिस 2 क्वेश्चंस हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय सेम पर्सन, these 2 questions have to be prepared by same person, therefore A cannot be this person has to be C and this person has to be D। और अब A के 3 questions allocate करने consecutive, starting question being 5, so the next 2 questions have to be for A। I hope ये clear है, and I think अब life is very easy। हमें पता है, लास्ट वाला मैं इरेज करके ढंग से लिख दूं, लास्ट वाला दिस इज डन बाय F, तो लास्ट इज एफ, एफ ने 2 क्वेश्चन बनाए तो आखिरी के 2 कंसेक्यूटिव एफ बनाएगा। ई ने अगर 8 बनाया तो ई विल प्रिपेयर द 9th क्वेश्चन एज वेल। अब बचा एक ही पर्सन, ए बचा कौन, बी, बी विल बी हियर। सो हमें सारे क्वेश्चंस किसने बनाए हैं, किस ऑर्डर में बनाए हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली। I hope this is absolutely clear. If you have any doubt, please let me know in comments. I'll be more than happy to answer. But this is the final distribution. MT के 11 questions, ET के 13 questions. MT के पहले 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, अगले 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, अगले 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ET के पहले 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, अगले 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और लास्ट के 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और ए से लेकर एफ तक उनके नाम्स एलोकेटेड है कि किसने कौन सा क्वेश्चन बनाया। दिस इज द टेबल दैट वी यूज्ड। लेट्स क्विकली आंसर द क्वेश्चंस। द सेकंड क्वेश्चन इन ईटी, ईटी का सेकंड क्वेश्चन वाज प्रिपेयर्ड बाय डी, डेव, तो करेक्ट आंसर विल बी चॉइस सी, डेव। हाउ मेनी 5 मार्क क्वेश्चंस वर देयर इन एमटी एंड ईटी कंबाइंड? एमटी में 5 क्वेश्चन थे, एमटी में 5 थे, और ईटी में कितने थे, ईटी में 8 थे, तो 5 + 8 13, चॉइस डी बिकम्स द आंसर। Who prepared 15 mark questions for MT and ET? 15 mark questions यहाँ पे E और D ने बनाए 15 मार्क के, और 15 mark questions यहाँ अकेले F ने बना दिए, तो EDF, EDF, only EDF correct answer choice है। Which of the following questions did B prepare in ET? B ने ET में कौन से बनाए, तो B ने ET में 10 और 11 क्वेश्चन बनाए,
तो 10th क्वेश्चन में दिख रहा है 10th क्वेश्चन 11th नहीं है, 10th और 11th बी ने बनाया, करेक्ट आंसर चॉइस बी. सो दिस कंप्लीट्स अवर सेट, probably one of the most time consuming sets so far that we have seen. CAT 2019 slot 2 का I would say doable वाली category में भी it would fall somewhere in the moderate to difficult category only because it was not easy. Although we were familiar, we felt कि clues में ambiguity नहीं है, but वो clues को relate करना, time pressure में mapping करना is not that easy. It will be time consuming. बन जाएगा ये sure है, थोड़ा time दोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा, but वो effort डालना, वो cases बनाना, वो सोचना will require a lot of effort. So a good learning from this particular set. Please share in comments whatever your thoughts while you were solving. Please keep encouraging. We are getting some fabulous response from this series, and I am absolutely certain कि अगर आप ये 114 सेट्स जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व करें, आप अपने लेवल पे खुद ट्राई कर लें, यहाँ सॉल्यूशंस देख लें, जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसका रिकैप कर लें, फेट फ्रेमवर्क के साथ कंफर्टेबल हो जाए. इफ यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस, believe me, there is no reason why you shouldn't get a fabulous CAT percentile. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.